लेसन नंबर 5, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एसिड्स बेस, एसिड एंड बेस किसको बोलते हैं? एसिड मीन्स विच कंटेन्स H positive ions, okay, and base means which contains OH negative ions. H positive ion is called as the basic radical, okay. The acid contains H positive ion and base contains OH negative ions, and neutral salts is called as the neutral, okay, which does not contain H पॉजिटिव एज वेल एज OH नेगेटिव आयंस। इसमें H पॉजिटिव आयन भी नहीं होता और OH नेगेटिव आयंस भी नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्ट्स, एंड सॉल्ट्स इज न्यूट्रल इन नेचर, ओके। सो you have seen that some foodstuffs are sour to taste and some foodstuffs are bitter to taste. So sour taste, acids are generally sour taste, okay. Acids have sour to taste, okay. Yes, acids are sour to taste and base are bitter to taste, okay. Bitter to taste. Sour म्हणजे आंबट, okay. Acids are generally sour to taste and base are generally bitter to taste, okay. अभी लेकिन हम फूड स्टफ्स हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर केमिकल्स अगर आइडेंटिफाई करना है, सपोज द गिवन केमिकल इज एसिडिक और बेसिक, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गिवन केमिकल इज एसिडिक और बेसिक? देन यू हैव टू यूज द लिटमस पेपर, ओके। क्योंकि हम फूड स्टफ जो खाने की चीज़ है हम वो टेस्ट करके देख सकते हैं कि गिवन फूड स्टफ इज suppose curd is sour to taste, so it is acidic in nature, okay. So some foodstuffs are bitter to taste, ठीक है। जो foodstuffs हम खा सकते हैं उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन केमिकल्स हम टेस्ट कर सकते हैं नहीं। तो केमिकल्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लिटमस पेपर। तो एसिड का इफ वी यूज द लिटमस पेपर, इफ वी डिप द लिटमस पेपर इन एसिडिक सॉल्यूशन, देन इट बिकम्स red color, okay. So when blue litmus paper turns to red color, then that means the given chemical is a acidic in nature, okay. And base means when it turns to blue color. When red litmus paper turns to blue litmus paper, that means it is the given chemical is basic in nature. Understood? So acid means, let's learn once again, let's revise. Acid means, what is meant by acid? Acid contains H positive ions, okay, as a basic radical, okay. This is first point. Second point, acids are sour to taste, okay. And third one, blue litmus paper turns to red litmus paper, okay. ओके, सो एसिड क्या होता है कि जिसमें H पॉजिटिव आयंस होना चाहिए। H पॉजिटिव आयंस इज जनरली बेसिक रेडिकल, H पॉजिटिव कॉल्ड एज द बेसिक रेडिकल। अगर कंपाउंड में अगर H पॉजिटिव आयन है तो गिवन कंपाउंड इज एसिडिक कंपाउंड, ओके। सेकंड पॉइंट, एसिड्स आर जनरली सोर टू टेस्ट, सम फूड स्टफ्स आर सोर टू टेस्ट, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। थर्ड वन, इफ वी यूज द लिटमस पेपर to identify the given substance is acidic or basic, then suppose the given substance is acidic in nature, then blue litmus paper turns to red litmus paper. Blue litmus paper का conversion किस में होता है? red litmus paper. That means the given substance is acidic in nature, okay. अभी देखते हैं बेस। बेस क्या होता है कि जिसमें OH पॉजिटिव आयन होता है,
OH नेगेटिव आयन होता है, सॉरी, एज अ एसिडिक इन नेचर. ओके, एसिडिक रेडिकल. ओके, देन सेकंड वन, bases are bitter to taste. Then third point, red litmus paper turns to blue litmus paper. Okay, this is the difference between acidic and basic. So next, let's see the example of acids, bases and salts. Okay, so given, suppose this is HCl. HCl means the molecular, this is the molecular formula of HCl. So what is the molecular name of this HCl? HCl means hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid. So the molecular formula of hydrochloric acid is HCl. So it contains H positive ion. आपको बताया था मैंने कि acid means जिसमें H positive ions present होता है, this is called as the acid. Okay, so the given compound is acidic in nature. Okay, so H plus means basic radical. Generally positive ion जो होता है वो basic nature का होता है. Okay, H positive as a basic radical and OH नेगेटिव या नेगेटिव आयन जो भी होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एज अ एसिडिक रेडिकल. ओके, सो H बेसिक रेडिकल मीन्स H पॉजिटिव आयन. ओके, देन टाइप ऑफ कंपाउंड Cl नेगेटिव इज अ एसिडिक रेडिकल. ओके, जो नेगेटिव होता है वो एसिडिक रेडिकल होता है और जो पॉजिटिव होता है वो बेसिक रेडिकल होता है. ठीक है, तो HCl मीन्स इट इज द टाइप ऑफ द कंपाउंड. द गिवन compound is acidic, basic or neutral. It is acidic because it contains H positive ion. Okay, acid. HCl is acid. Understood? So second example, H2SO4. Okay, H2SO4 means the molecular name of this H2SO4. H2SO4 means sulfuric acid. This is sulfuric acid. Okay, it contains again twice H positive ion. Twice H positive ion is a basic radical. Okay, and SO4 negative means acidic radical. Okay, so type of the compound acid because it contains H positive ion. Then next, third one, HBr. The molecular name of this HBr, hydrobromic acid. Hydrobromic acid. Okay, this is also acid because it contains H positive ion as a basic radical. So H positive, Br negative, acidic radical. Okay, so this is also acid. Okay, next one, NaOH. NaOH means sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Hydroxide means OH, जिसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड एज द बेस. ओके, सो Na पॉजिटिव मीन्स आपको बताया था मैंने कि पॉजिटिव क्या होता है, बेसिक रेडिकल होता है, और नेगेटिव क्या होता है, एसिडिक रेडिकल. ओके, सो यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, दैट मीन्स NaOH is a base. Okay, next example लेते हैं हम KOH. K means potassium hydroxide. OH means hydroxide and K means potassium. Potassium hydroxide. Which contains K positive as a basic radical and OH negative as a acidic radical. So the given compound is base because it contains OH negative ions. Okay, so और एक लेते हैं example. This is NaCl. NaCl means जिसमें अभी देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप,
NaCl में H पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट नहीं है और OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट नहीं है। तो आपको बताया था मैंने कि न्यूट्रल सॉल्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल। सॉल्ट्स में H पॉजिटिव भी नहीं होता और OH नेगेटिव भी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एब्सेंट है, दैट मीन्स द गिवन कंपाउंड इज न्यूट्रल इन नेचर। तो NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड। तो Na पॉजिटिव मीन्स बेसिक रेडिकल and Cl negative means acidic radical and the type of the compound neutral. Okay, understood? So now we learned that the compounds are of three types: acidic compound, basic compound and neutral compound. Okay, but what is meant by compound? Compound क्या होता है ये? Okay, पहले कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड किसको बोलते हैं? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन देयर फिक्स प्रोपोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम HCl का लेते हैं एग्जांपल। HCl इज आल्सो कंपाउंड। कंपाउंड क्यों है ये? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट कितना है? 1 और क्लोरीन एलिमेंट कितना है? 1। ओके, व्हेन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन देयर फिक्स प्रोपोर्शन। अभी HCl में प्रोपोर्शन कितना है? हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन कितना है? 1 और क्लोरीन का प्रोपोर्शन कितना है? 1। सो 1:1। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन देयर फिक्स प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज द कंपाउंड। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि H2O लेते हैं। H2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। ओके, the molecular formula of water is H2O which contains 2 hydrogen atom। हाइड्रोजन कितना है? 2। ओके, और ऑक्सीजन कितना है? 1। सो यहाँ पे प्रोपोर्शन कितना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? 2:1। ओके, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन देयर फिक्स प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज द कंपाउंड। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट वन देखते हैं अभी, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या है ये? ठीक है, आयोनिक कंपाउंड देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड मींस जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, आयंस आर देयर, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जिसमें पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द आयोनिक कंपाउंड। ओके, सो अभी आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है देखो। अभी सपोज एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का। ओके, NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड। व्हाई NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड? बिकॉज Na एंड Cl में देखो, Na एंड Cl में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि जो बॉन्ड अट्रैक्शन से फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड। अभी यहाँ पे देखो, Na इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड Cl इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज, द bond is formed by the force of attraction between two oppositely charged ion। अभी यहाँ पे पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे नेगेटिव आयन है। तो आपको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो जो बॉन्ड अट्रैक्शन से फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड। Okay, and this compound is called as the ionic compound. So NaCl is an example of ionic compound. ठीक है, लेकिन Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है और Cl नेगेटिव क्यों है देखते हैं अभी। ठीक है, अभी देखते हैं Na मीन्स सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? Na1। ओके, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये सोडियम एटम है, ठीक है, दिस इज सोडियम एटम। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है?
2 electrons है. This is first orbit which contains 2 electrons. This is first electron. This is second electron. Okay. Then second orbit में 8 electrons present है. This is second orbit which contains 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. And last orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है. अभी देखते हैं क्लोरीन का. क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. ओके. एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 7. ओके. सपोज दिस इज क्लोरीन एटम. इट्स फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके. सेकंड ऑर्बिट कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. And third orbit contains, third and last orbit contains 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके. अभी आपको पता है एवरी एटम, एवरी एलिमेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ऑक्टेट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक एलिमेंट क्या होता है? इनएक्टिव होता है. और इनएक्टिव होता है इसलिए वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इजीली टेक पार्ट करता है. क्यों टेक पार्ट करता है वो? क्योंकि उनको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने का होता है. ठीक है. जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो अनस्टेबल होता है. ठीक है. एवरी एलिमेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. हाँ. सो जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो अनस्टेबल होता है. और अनस्टेबल जो एलिमेंट होता है वो ऑलवेज केमिकल रिएक्शन में किसी भी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है. क्यों कंबाइन होता है? क्योंकि उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने का होता है. कंबाइन क्यों होता है? क्योंकि वो कंबाइन होने के बाद वो 3 वेज से उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. एक तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है. अगर इलेक्ट्रॉन्स सेकंड वे है उसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. वो अगर कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ये 3 वेज से वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट करता है. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. उसके आउटर मोस्ट शेल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2, 8, 1. उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. अगर ये इलेक्ट्रॉन उसने उसके आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1. तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7. सो इज इट पॉसिबल टू, ऐसा पॉसिबल है कि कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे सकता है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो उसको क्या करना पड़ेगा? एक उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर उसने ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सपोज, तो उसका अगर ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन अगर गया तो उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? ये वाला 8. तो वो स्टेबल हो जाएगा. ठीक है. एलिमेंट स्टेबल कब होता है? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो सपोज सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. 2, 8, 1. ठीक है. लेकिन उसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो स्टेबल हो सकता है. तो उसका आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगा 8 वाला. जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो एलिमेंट क्या होता है? स्टेबल. तो सपोज वो क्या करेगा? सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन
डोनेट करेगा। अभी क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 287। क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन कोई भी अदर एलिमेंट्स उसको इजीली डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो क्लोरीन का टेंडेंसी क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो उसने सोडियम ने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 7 का क्या हुआ 8 हो गया, ठीक है। अभी ये भी स्टेबल हो गया और सोडियम भी स्टेबल हुआ, सोडियम भी स्टेबल हुआ और क्लोरीन भी स्टेबल हुआ। तो यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑर्बिट रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा, ये वाला 8, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको पता है एवरी एलिमेंट का टेंडेंसी क्या होता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने का, जब तक वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो अनस्टेबल होता है। अभी सोडियम स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हुआ क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। अभी जो डोनेट करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, इसलिए सोडियम इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, अंडरस्टूड। लेकिन क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। अभी पहले क्या था वो अनस्टेबल, लेकिन क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए क्लोरीन ने कौन सा वे यूज किया, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, ओके। दैट्स व्हाई क्लोरीन इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन, अंडरस्टूड। सो पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये दो अपोजिटली चार्ज आयन है। तो ये दो अपोजिटली चार्ज आयन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है अपोजिट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड, अंडरस्टूड। सो NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड।